नमस्कार, आप सुन रहे हैं द चाय डेली पॉडकास्ट और आज का विषय है भारत में विधिक साक्षरता यानी लॉ लिटरेसी यानी नागरिकों की कानून और अधिकारों को लेकर जागरूकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन एक अहम सवाल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है कि क्या इसके नागरिक वास्तव में अपने बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों को जानते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश की बड़ी आबादी कानूनी जानकारी से वंचित है। इसका असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और न्याय व्यवस्था पर दिखाई देता है। इस कड़ी में हम जांचेंगे कि भारत में विधिक साक्षरता इतनी कम क्यों है, इसके अभाव से किसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है और इसे दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही हम महिलाओं और वंचित तबकों से जुड़े अधिकारों पर भी रोशनी डालेंगे, जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं। हाय सुरभि, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और आज आपके साथ यहाँ पे बात करके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। Thank you so much for calling in and having me on this platform. Yes, absolutely. So the very important topic, Surabhi, the legal literacy in India is, I think, a very crucial topic and very relevant for all of us. So I thought that this was a very, very important topic to talk about. So let's figure out what is the literacy rate right now in India, and why is it, if it is low, why is it low? So literacy rate would be 33, I guess, or 40% of the population. Okay. I would roughly say it is 80%, 80 crore people who are below the literacy rate. And the reason is that it is not included into our curriculum studies in our day-to-day NCERT books. It is a very elective subject which is a part of our studies and in the schools. Yeah. Also, that is very much limited to Kendriya Vidyalayas, I would say. So the private schools are still to have them into the compulsory subject, and it is mainly confined to 11th and 12th, and that too on an elective basis. So it is like an optional subject, as we have physical education or we take any other optional subject. So same way you can opt for legal literacy and legal subject to be there for 11th and 12th. So could be this is one of the reason that from the very childhood we are not having a knowledge about legal. Also when we grew up, so in a day-to-day life we tend to hear from the people around us, and that's what we follow. So there is no very much of the basic knowledge that we grab and is moving with us as we grow up. So could be that is the reason. And there are constitutional rights etc. जो हमें मुझे लगता है एज ए सिटीजन हमें पता होना चाहिए, शायद वो भी उतना हम अवेयर नहीं हैं एज ए पॉपुलेशन, आई फील, राइट? Because there is a lack of connect. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, और एक हमारा माइंडसेट होता है, जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स के साथ या अपने बड़े एल्डरली लोगों के साथ बाहर जा रहे हैं, तो हम जैसे ही पुलिस वाले को देखते हैं तो एकदम सेंस ऑफ फियर स्टार्ट्स पॉपिंग इनटू आवर हेड कि अब कुछ गलती कर दी होगी इसलिए शायद ही इज स्टॉपिंग अस, एंड दैट ओनली ग्रो with us with the passage of time. Correct. And slowly and steadily when we also grow up, though we are very educated, we could be a IT graduate and we could be a very hotshot IT person or any individual who is working into any sector, could be a businessman also, but we don't tend to go into the details of it, that what are the laws, what are our rights, what are our duties that we as an individual need to do towards the society that will help us to grow. It is not only that it is helping individual to grow, rather on behalf of the society also, if we talk that how it is improving us, how it is improvising our day-to-day lifestyle. So that only comes along with us. Then we grow up, we move out. Even today, if any individual who is moving out and driving a car, दिन में भी पुलिस वाले ने रोक लिया तो आप सोचोगे कि यार अब क्या गलती कर दी. So we have a sense of fear with us. Correct. Might be if we just have
a knowledge. We understand that what are the documents when we require when we are driving a car or a two-wheeler or any time we are moving out on a highways. So it may help us to grow Right, right. individually. So that lack is there because from childhood only we have been trained in such a individual pattern that okay, this is how you understand Yeah. कि हमें ये सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सरकार ने हमसे जीएसटी ले लिया, सरकार ने हमसे इनकम टैक्स ले लिया, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि अगर हम वो दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में व्हाट सरकार इज डूइंग फॉर अस. सो इफ वी स्टडी दैट अ बिट, आई गेस इट विल हेल्प अस. So what are the common legal rights you feel कि हमें पता होने चाहिए पर हमें इन जनरल नहीं पता होता? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक टेनेंट हूँ तो मेरा टेनेंट होने के नाते लैंडलॉर्ड के साथ क्या लीगल राइट्स मेरे हैं या क्या लीगल प्रॉस्पेक्ट हो सकता है जो मुझे पता होना चाहिए. दैट इज़ वन एग्जांपल. कुड बी अनदर एग्जांपल इज़ कि एज ए एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर हमारे आपस में क्या इंटर रिलेशन में क्या कुछ लीगल अवेयरनेस हमें होनी चाहिए. सपोज इफ वी टॉक अबाउट द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, तो आपका एक एग्रीमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए. एंड इफ यू आर लिविंग एज अ टेनेंट, सो द लैंडलॉर्ड कैन नॉट कट योर इलेक्ट्रिसिटी, कैन नॉट स्टॉप योर वाटर सप्लाई, कैन नॉट एनी टाइम कम इन टू योर प्रीमाइसेस until unless it is mentioned in your agreement that आपका जो लैंडलॉर्ड है वो कभी भी आपके डोर पे आके बेल बजा सकता है और आपके घर पे विजिट कर सकता है, सरप्राइज विजिट. इफ इट इज़ नॉट मेंशन एंड इफ यू डोंट शेयर वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर लैंडलॉर्ड, so he cannot just bump into your premises. Oh really? any That is a time. legal right That of is the a- tenant? Exactly. Oh. Because अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में मतलब जा रहे हो और आप उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, अब नाउ द लैंडलॉर्ड कैन से कि ये तो मेरी ही प्रॉपर्टी है ना, बट टिल द टाइम आपने एक एग्रीमेंट किया है, आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आप उसकी सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हो, आप उसे किराया टाइम पे दे रहे हो, आप उसके घर को प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हो, तो तब तक वो आपका घर है. So you have a complete right over that house. Your landlord can come in a cordial relationship कि हाँ भाई कभी आए आपको चेक कर लिया, बट ऐसे नहीं कि रात के 12 बजे भी आ गए एंड देन नॉकिंग एट द डोर कि मुझे अपना घर देखना है. दैट ही कैन नॉट डू. ही कैन नॉट कट योर इलेक्ट्रिसिटी, ही कैन नॉट मतलब स्टॉप द सप्लाई ऑफ वाटर. देन आप बड़ा पीसफुली रह रहे हैं तो मतलब उसका एक क्राइटेरिया है कि वो एग्रीमेंट में लिखा होता है Right. कि आप उसको फॉलो करेंगे और जो भी आपके क्लॉजेज होते हैं आप उसके साथ इंडिविजुअली उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. Correct. सो एवरीथिंग मतलब द फोरमोस्ट थिंग विच वी शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट इज दैट यू नीड टू हैव अ एग्रीमेंट विद योर लैंडलॉर्ड और आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू कि अगर कल को आपका लैंडलॉर्ड आपने जो एडवांस दिया है वो नहीं पे करता वापस जब आप उस घर को छोड़ रहे हैं, तो यू कैन क्लेम बैक टू द लैंडलॉर्ड. इसी तरह से अगर आपका टेनेंट है और वो कल को घर नहीं खाली कर रहा है जब लैंडलॉर्ड इज सेइंग आफ्टर 11 मंथ्स की वेकेट द हाउस, सो लैंडलॉर्ड शुड बी नोइंग इट कि वेयर एग्जैक्टली दिस पर्सन कम्स फ्रॉम. द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन शुड बी वेरी क्लियर. Okay. In the another case, as you talked about, in a corporate culture we are an employee and an employer, so both male and female should be knowing their rights. If we come on the female part, female should know that there is a POSH Act which Yeah. very much is relevant and is prevalent into the every corporate house where more than 10 females are working. Right. So that becomes a compulsory part for our organization to have the POSH committee. Okay. Suppose if somebody molests you, shows cruelty towards you, humiliate you, Yeah. so you can always go and register your complaint in the POSH committee, and then POSH committee has a particular timelines to give the decisions, hear the hearings, and then comes to the conclusion. Same way the men also can approach and then file their complaints if they are also being molested and then they are also been facing any cruelty from their higher end team or bosses. So that way every employer and employee has their policies. Again we go back to the HR team. HR team also have their contracts and agreements. You should always go through the contracts and the agreements. Though they are into the legal terms and the legal words and the phrases are quite difficult to understand, but try to understand because there lies the shadow clauses
which Okay, becomes what are the shadow clauses? clauses which are not very confrontly mentioned into your agreement or contract, but it overshadow your clauses which are mainly mentioned into that. So that way there is a little bit of words change over there, which can change the complete meaning of the Meaning. sentences. Oh, So you need to very thoroughly go through those clauses, understand it, so that when you leave the organization or when you are stuck somewhere in your organization, be during your appraisal time, be while you leave the organization, or you go abroad with your organization, so it is easy for you to follow those clauses. Yeah. And then demand your rights over there. okay. Another thing in the same context, कई बार हम एज एन इंडिविजुअल जाते हैं पुलिस स्टेशन में कुछ एफआईआर दर्ज कराने, तो एक वहाँ पे भी एक राइट वाला जो पॉइंट है वो हमें क्लियर नहीं रहता है कि हमारा क्या राइट है. कई बार पुलिस वाले बोल देते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते आप एफआईआर, या वैलिड नहीं है एक्सेट्रा, तो लोग वापस आ जाते हैं. आई मीन दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें कितना असर्टिवली वहाँ पे बात करनी चाहिए from their rights perspective. See, usually the police officer or a IO cannot deny that fact कि आप अगर एफआईआर कराने आए हैं और वो एफआईआर करने से मना कर दे. अगर वो एफआईआर करने से मना कर रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों मना कर रहा है. अगर आपके पास प्रॉपर जेन्युइन रीज़न है, सपोज अगर वो, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाला आपको इसलिए मना कर देता है कि वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, बट उसमें भी आपका एक आप एफआईआर को रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए. और जहाँ पे वो इंस्टेंस हुआ है, जैसे सपोज कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, हम बात करते हैं कि गुड़गांव में एक एक्सीडेंट हो गया और वो गोल्फ कोर्स रोड पे हुआ है. अब जो गोल्फ कोर्स रोड का चौकी या थाना होगा, आपने वहाँ गए और आपने वहाँ पे रजिस्टर कराई, बट वो एक्चुअली वो गोल्फ कोर्स रोड पे ना होगी, किसी और दूसरे जुरिस्डिक्शन का है. तो आप, बिकॉज इट इज़ अ सीवियर कंडीशन, सीवियर एक्ट है, आपने वहाँ पे रजिस्टर कराई, उसके बाद वो पुलिस वाला ही अपने ऑन बिहाफ पे वो जिस जुरिस्डिक्शन में है उस जुरिस्डिक्शन में उसे पास कर देगा. ओके. ऑल्सो जब आप जा रहे हैं तो एफआईआर रजिस्टर कराने के साथ साथ यू नीड टू टेक द रिसीविंग ऑफ द एफआईआर. ये लोग भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पुलिस टू रिजेक्ट इट एंड देन लेटर ऑन से कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं था एफआईआर कराने के लिए. So receiving is a copy of the FIR, या or is रिसीविंग it ऑफ a द कॉपी ऑफ द एफआईआर. what you तो have आप written? जब भी एफआईआर देते हैं उसका एक आप फोटो स्टेट लेके जाएं. अगर आप फोटो स्टेट नहीं लेके जा रहे हैं तो 2 रिटन, हैंड रिटन लेके जाएं. दोनों की वहाँ पे रिसीविंग ले, मतलब दोनों की वहाँ पे जो भी आईओ या पुलिस ऑफिसर है उससे साइन करवाएं. और आप उसमें से एक उसकी साइन करी हुई कॉपी वापस अपने साथ लेके आएं एज अ प्रूफ कि आपने एफआईआर रजिस्टर कराई है. ऑल राइट, ऑल राइट. और इसके अलावा जैसे कई बार अनफेयर अरेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ आपका राइट है, मतलब आपको पता ही नहीं यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए. सो यू शुड नॉट स्पीक. जैसे अब सपोज पुलिस वाले ने आपको मतलब देखा कुछ भी नॉनसेंस एक्ट करते हुए और वो आपको गिरफ्तार करके ले गए. सो देयर अगर पुलिस वाला आपको बोलता है कि आप यहाँ पे बताएं कि आपने क्या करा, सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू स्पीक देयर. यू कैन बी क्वाइट एंड देन यू कैन डिमांड अ लॉयर देयर. मतलब आप अपने वकील के लिए बोल सकते हैं कि मुझे एक फ़ोन करना है या आई नीड अ लॉयर, देन ओनली आई विल स्पीक एंड देन ओनली आई विल गिव माई स्टेटमेंट. सो गिविंग स्टेटमेंट विदाउट अ लॉयर इज़ नॉट कंपल्सरी. ओके. मीन्स यू कैन कीप क्वाइट, आप चुप रहें और अपने लॉयर को बुलाएं और उसके सामने वो स्टेटमेंट दे और तब उसको रिकॉर्ड करवाएं. तो दिस वे यू कुड बी सेव्ड. मतलब आप जैसे सपोज ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया बट आपने पुलिस वाले को बता दिया और पुलिस वाले ने उसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करके अपने बयान में लिख लिया या एफआईआर में रजिस्टर कर लिया, तो वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं. बट इफ़ यू आर डूइंग दैट सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ योर लॉयर, सो यू आर इन द सेफ हैंड्स. सो इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल कि अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पहली बात तो आप चुप रहें, दूसरा आप रीज़न पूछें कि क्या रीज़न की वजह से वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं, और तीसरा कि आप अपने लॉयर को बुलाएं एंड देन ओनली टेक एनी फर्दर एक्शन. और इस बीच में अगर वो इंटरोगेशन स्टार्ट करते हैं तो यू शुड बी ऑलवेज क्वाइट, नो नीड टू स्पीक. वी कैन सिंपली से कि अभी हाँ, मुझे नहीं बात करनी हाँ, है, मैं अपने exactly, लॉयर का के exactly, आने के बाद ही मैं बात exactly, करूँगा. because that is the safest area for you to play. ओके. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो कई बार घरों में हिंसा होती है
उस केस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप उस, क्योंकि वो इतना नॉर्मलाइज हो चुका है, लोगों को लगता है कि परिवार में तो ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको, स्पेशली ये होता है, वैसे तो मेल फीमेल दोनों के साथ ही हो सकता है, बट फीमेल के केस में ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको लगता है कि इमिडिएटली, मतलब एवरी वुमेन शुड बी अवेयर ऑफ इट इन केस ऑफ हैरेसमेंट और अब्यूज़ एट होम? अगर आपके साथ जैसे सपोज शादी हुई और शादी के बाद ही अगर आपको कहीं भी फील होता है कि यू आर फीलिंग इनसिक्योर, इनसिक्योर नहीं कहूँगी मैं, कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप सस्पिशियस हो कि आप बाहर गए तो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रूअल्टी हो सकती है, तो यू शुड ऑलवेज अप्रोच द पुलिस स्टेशन। आपको मतलब कॉल कर देना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्टर करने के बाद वही आप रिसीविंग लें उसकी, और उसके बाद कोशिश करें कि आप जब भी घर जाएं वापस तो पुलिस के साथ ही जाएं, मतलब अगर आपको लगता है कि इतना सीवियर एक्ट हो रहा है। राइट। दूसरा, कभी भी डोंट कीप ऑन एक्सेप्टिंग, मतलब वो जो होता है ना आपके अगेंस्ट, मतलब आपको मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं और आप लेते जा रहे हैं, इसलिए कि हमें सोसाइटी का प्रेशर होता है हमेशा। जैसे कि अभी वेरी रीसेंट थिंग विच हैपेंड इन ग्रेटर नोएडा फॉर द निक्की केस, सो हर हस्बैंड वाज किलिंग, मीन्स बीटिंग हर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, and the reason which came out to be is like she was making the videos and the reels on the YouTube. So that was a very basic thing, but rather it was a dowry case and they've been demanding it since ages. So आपको शायद अपने पेरेंट्स के सामने बहुत ओपन होकर बात करनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लग रहा है तो यू शुड गो बैक टू योर पेरेंट्स हाउस, कंप्लेन रजिस्टर करानी चाहिए, और तब तक वापस नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई लीगल एक्शन नहीं हो जाता। हर पेरेंट्स वर नोइंग अबाउट इट बट स्टिल दे डिड नॉट स्पीक अबाउट, मतलब बिकॉज उनके घर पे एक मर्सिडीज कार थी, सो दे वांटेड कि उसको भी एक सेम कार मिले एंड दे शुड हैव मोर डॉरी इन देयर हैंड, दो ऑलरेडी दे वर हैविंग वन कार विद देम, बट स्टिल शी केप्ट ऑन, मीन्स टेकिंग इन मोर एंड मोर। वो मारता था, उसे पीटता था और वो चुपचाप सहन करती रही, बिकॉज हमें यही सिखाया जाता है कि अब शादी हो गई तो वो ही आपका घर है, एंड दैट इज द वेरी फोरमोस्ट, अच्छा माना जाता है, फोरमोस्ट रीजन कि लोग आवाज उठाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसमें लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं दिखा पाते। वी काइंड ऑफ मेंटेन दैट कम्युनिकेशन गैप, हमारा पेरेंट्स के साथ हो जाता है। जब लड़की अपने घर से निकलती है तो यही माँ कह के भेजती है कि अब ससुराल इज़ योर होम। आई गेस बिफोर दैट थिंग माँ को ये बोलना चाहिए कि वो आपका घर है, बट अगर आपके साथ कभी भी कुछ है सो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच बैक। बट वो चीज़ शायद हम माँ बाप हमें बच्चों को सिखाना या बताना भूल जाता है, बिकॉज ऑफ विच जो लड़की है वो ऐसी सिचुएशन में जाके खड़ी हो जाती है कि जहाँ पे उसे हर जगह पे अपने ट्रेडिशंस, अपने सोसाइटी का प्रेशर, दीज ऑल स्टैंड ऑन आवर हेड एंड शी इज़ नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट इट। मुझे लगता है कई बार ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ ऑलवेज देयर। आप अभी भी अगर स्मॉल टाउन्स में चले जाएं, आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं, आप अपने कल्चरल प्रेशर, ट्रेडिशनल्स, मतलब जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपके ट्रेडिशंस, उसका प्रेशर, उसके बाद आपकी जो एक लैक ऑफ नॉलेज है, आपका लिटरेसी रेट इज़ सो पुअर, उसके बाद आपकी बहुत ही छोटी उम्र में आज भी शादी कर दी जाती है कि यू टेंड टू बी बर्डनिंग अंडर दैट, और आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि आई कैन ऑल्सो स्टैंड अगेंस्ट माई ऑल ऑड्स एंड देन फाइट फॉर इट। और कहीं मुझे ये भी लगता है कि वो जो एक फाइन लाइन है जहाँ तक आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए बट उसके बाद नहीं करना चाहिए, वो जजमेंट कि वो फाइन लाइन क्या है, ये मुझे लगता है थोड़ा अवेयरनेस कम है या इसके बारे में बात नहीं की जाती है शायद। एक्चुअली देयर इज़ नो सच फाइन लाइन, मतलब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज़ द फाइन लाइन। अब सपोज कोई वर्किंग वाली लड़की है जो सुबह से रात तक काम पे जा रही है और रात को वापस आ रही है,
वो अपनी फाइन लाइन कैसे डिफाइन करेगी कि she'll come back home, then she'll make food for everyone, and then at the last she'll grab the food for herself. ये उसकी शायद फाइन लाइन हो गई. जो पूरा दिन घर पे है, एक औरत काम कर रही है और शायद उसका पति आए रात को, वो उसकी पैर दबाए, उसे अच्छे से खाना खिलाए, फिर बच्चों को खिलाए, फिर सारा दिन सास ससुर की सेवा करे. शायद वो उसकी फाइन लाइन है कि वो उस पैरामीटर में रहकर अपनी एक डेफिनेशन सेट कर लेती है. I'll cite you a very recent example. There is a friend of mine. His sister is been married for almost 22 years. और उनके husband ना ड्रिंक करते हैं, ना स्मोक करते हैं. And she been like a typical housewife, been treating her and has devoted her whole life for him. तो उनका एक सेट पैरामीटर था, मतलब एक रेडियस हो गया, आप डिफाइन कर सकते हैं कि सुबह उठी हैं तो वो सुबह योगा करेंगे, तो वो उसमें सुबह उठ के उनके लिए कारपेट, मतलब वो योगा मैट बिछाएंगी, उनके लिए पानी ला के रखेंगी. फिर बिफोर ही सेज हर नेम देन शील गो बाथरूम में टॉवल टांग देंगी, मतलब साबुन रख देंगी, शैम्पू रख देंगी. देन शील कम आउट, देन बिफोर ही सेज हर नेम शील बी स्टैंडिंग विद द टॉवल कि अच्छा चलो आप नहा लिए. फिर सूरज का लोटा लेके वो सूरज को जल देने जाएंगे, फिर वो नीचे खड़ी होंगी तो वो वापस लेके आएंगे. सो देयर इज अ डिफाइंड लाइन फॉर हर. वो उसकी पैरामीटर हो गया. जिस दिन उसने शायद वो चीज़ नहीं की तो वहीं पे शायद उसका पति उस पर चिल्ला सकता है या उसके साथ मार धाड़ कर सकता है. अब वो वही चीज़ करती आ रही हैं फॉर 20 years. उसमें कहीं ना कहीं अगर वो चूक हो गई, सो देयर इज बीन अ मेंटल एग्नी टू हर, देयर इज बीन अ काइंड ऑफ टॉर्चर टू हर विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ बीटिंग हर, या फिर आप कह सकते हैं मार धाड़ करना. आपको फिजिकल असॉल्ट कहीं नहीं दिया जा रहा है, बट मेंटल एग्नी दी जा रही है. एंड आफ्टर अ वाइल 20 years के बाद one fine day she behaves like a 7-year-old kid and she is mentally unstable. And then her daughter calls her mama and says कि मम्मा को कुछ हो गया है. And then all of a sudden that brother rush back, sees, तो her sister is behaving like a 7-year-old kid. Now who's to be blamed? So they consult a psychiatrist और वो बोलती हैं कि शी इज़ इनटू द लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर. और वो अगर आप इंसान से मिल रहे हैं तो वो उतना सीधा है जैसे कि साधु. बट आपने शायद किसी दिन आलू का पराठा बनाना था, आलू का पराठा ना बना के सैंडविच खिला दिया, तो आपने प्लेट ऐसे उठा के फेंक दी. आपकी सास भी बोलने लगी, आपकी नंद भी उस घर में रहती है, आपकी देवरानी जेठानी में रहती है. सो इट्स अ जॉइंट फैमिली. और वहाँ पे आपको उस तरह से टॉर्चर करा जा रहा है और आपको उस तरह से उस बाउंड्री में कन्फाइन किया जा रहा है. अब जो वर्किंग लेडी है उसको वैसे नहीं कन्फाइन कर सकते हम, क्योंकि आप उसे एक तरह से मेंटल एग्नी नहीं दे सकते. तो उसे अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि तुम घर में पैसा नहीं देती हो, तुम घर में सामान नहीं लाती हो, लोगों के रिश्तेदारों का कुछ काम होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो. There she goes through this kind of a torture. So how do we decide that lines? There is no such lines. मुझे ऐसा लगता है और ऐसा ही होना चाहिए कि जिस दिन पहली बार आपके साथ कुछ अत्याचार हो, आपको उसी दिन आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि इसके बाद आपका थ्रेशोल्ड आ रहा है. हर कपल में, हर फैमिली में कुछ ना कुछ नोक झोंक होती है, बट जितना आप उसे सहन करते जाएंगे ना, शायद उसका थ्रेशोल्ड उतना बढ़ता जाता है. और जिस दिन आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा लेंगे, शायद वो थ्रेशोल्ड वहीं पे माइनस में चला जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सहन करना चाहते हैं. What is your boundary? What is your This boundary? is a very personal thing which means, right? You have Because to... वो हर किसी के लिए अलग है. अब कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है जिसका पति रोज रात को शराब पी के आ रहा है, तो उसकी क्या बाउंड्री होगी. फिर अब कोई वर्किंग है, उसकी क्या होगी. कोई बिल्कुल ही जॉइंट फैमिली में रह रहा है, होम मेकर है, उसकी क्या बाउंड्री होगी. तो everyone is different, everyone's life is very different. You need to understand. मतलब आपके अगेंस्ट अगर एक बारी भी कुछ गलत हो रहा है, सो दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट बाउंड्री टू सेट ऑफ. मतलब आप किसी की सुनने के लिए नहीं बने हैं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. आपने अगर 20 साल 25 साल अपनी ज़िंदगी के
एक मुकाम तक पहुंचने के लिए दिए हैं. सो नोबडी कैन कम इन योर लाइफ इनफ, मतलब विद इन द नाइट स्पैन. मतलब ऐसे ही तो होता है, रात को शादी हुई, सिंदूर भरा, आप सुबह उठ के घर में पहुंचे तो आप ससुराल में खड़े हैं, आपका और नाम बदल गया. हाँ, आपकी पूरी जिंदगी एकदम 360 डिग्री टर्न ले लेती है. एंड देन यू आर लॉस्ट एंड नॉट एबल टू डिसाइड कि व्हाट नेक्स्ट. तो before somebody else take a control of your life, take a control of your life yourself, control yourself, matlab collect yourself, and then work on it. Correct. That should be the understanding for every women who is getting married, और जो जिन्हें लगता है कि शायद आवाज़ उठाना गलत है या आवाज़ उठाने से रिश्ते बिखर जाएंगे. मेरे ख्याल से उन रिश्तों को समेट के रखना चाहिए जिनमें थोड़ा सा वजन हो, तो वो बिखरेंगे ही नहीं. और जो बिखर जाएं, मतलब पैक होने से पहले ही, शायद वो रिश्तों में दम ही नहीं था. वेरी राइटली सेड सुरभि. एक और चीज़ इसमें है जो विमेन मुझे लगता है कि उतना ध्यान नहीं देती हैं, और मे बी दे आर नॉट अवेयर. फॉर एग्जाम्पल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन केस ऑफ विमेन. आप प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, करेक्ट. ओके, तो उसमें ऐसा है कि दैट इज़ लाइक अ लॉ विच इज़ बीन पास्ड, बट हम अगेन उसी चीज़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि जब शादी हो रही होती है ना, तो पेरेंट्स भी और आपकी सोसाइटी भी कि अब तो तू दूसरे घर जा रही है ना, तो तेरा क्या काम है इस प्रॉपर्टी का. तेरा पति इतना कमाता है, तेरे ससुराल में इतना बड़ा घर है, तो तुझे इस चंद मतलब गज की जमीन का क्या करना है. सो दैट काइंड ऑफ सोसाइटी प्रेशर फर्स्ट. सेकंड इज लाइक योर अपब्रिंगिंग. थर्ड आपके ट्रेडिशंस. फोर्थ आपका मेंटल सेटअप और जो आपका माइंड वॉश किया जाता है. फिफ्थ, दैट होल टुगेदर कंट्रीब्यूट कि जो औरत होती है ना, वो सोचती है कि मुझे जमीन जायदाद में हिस्सा लेने की ज़रूरत ही नहीं है. अदरवाइज she is equally been participant into the property. अगर हम हिंदू मतलब सक्सेशन एक्ट के लिए बात करें जी. अगर हम मुस्लिम उसमें आते हैं तो वहाँ पे औरत का जो हिस्सा है वो मतलब डिफाइन किया गया है कि इतना ही मिलेगा. अगर उसकी शादी के बाद उसका हस्बैंड नहीं रहता एंड शी इज़ अ विडो, तो she'll get 1/3 of it. This is about the Muslim community. This is the Muslim community. और अगर आपके मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद आपके पास बच्चे हैं तो आपको 1/10 मिलेगा. अच्छा, वाइफ को 1/10. हाँ. और बाकी नहीं मिलेगा. मतलब उसमें डिफाइन है, मतलब आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जो कि मुस्लिम्स के लिए है, उसमें औरत का जो हिस्सा उसे मिलना है वो बहुत ही लिखा गया है कि आपको इतना ही मिलेगा. तो कितने भी बच्चे हो मिलेगा 1/10. 1/10 ही. और मिलता है, मतलब ये शॉर्ट है, मिलता है, बट वो आदमी से कम होता है. मतलब जितना आदमी को मिल रहा है उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर. इसी तरह से आपका जैन और क्रिश्चियनिटी में है कि उसमें भी आपके लिखा गया है कि इतना इतना औरत को मिलेगा. बट होता वही है एक्चुअली, कोई भी औरत उस चीज़ को अवेल कर ही नहीं पाती है, क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको यही सिखाती है कि जिस दिन आपकी शादी होगी तो आपको क्या करना है धन संपत्ति का, अब तो आपका पति ही आपके लिए सब कुछ कमा रहा है. सो दैट काइंड ऑफ अ सेटअप, दैट काइंड ऑफ मेंटल brainwash which is being done in a women is very strong in our society. Even मतलब मैं ये आपके गांव देहात की बात नहीं करूँगी, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, मतलब जो हम अर्बन एरिया में आ जाते हैं, वहाँ पे भी ये कल्चर फॉलो होता है कि आप बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है यार तुझे, फिर वो आप लड़की को नाम दे देते हैं कि लाजो और रज्जो, और फिर बड़े प्यार से आप बात करते हैं. योर ब्रदर्स ऑल्सो बिकम वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट टू यू व्हेन कम्स द पॉइंट कि आपको वो प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है या उसका बंटवारा हो रहा है, तो आप बड़े प्यार से अपनी बहनों से बात करते हैं, सो दैट शी जस्ट साइंस द पेपर एंड देन एवरीथिंग गोज टू द ब्रदर और लाइक हूसोएवर इज बीन अ पार्ट ऑफ दैट होल डिस्ट्रीब्यूशन.
So that is there. Otherwise, female has the equal right. As much as the brother is getting, so do the sister gets. सो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. सो आई हैव अ फ्रेंड, दे आर लाइक वन ब्रदर वन सिस्टर, दो सिबलिंग्स हैं. एंड माई फ्रेंड ऑफ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स. Okay. जो उसका ब्रदर है, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स. मतलब वो अपनी फैमिली को दिखता है, अपने बच्चों के साथ रहता है अलग. Now she being married also, she's taking care of the parents, and she would take care of the hospital visits, the checkups, everything put together. And they have land, they have property, etc. But जब property की बात का discussion, so she told me about this, she confided in me कि जब वो बात हुई तो मेरे brother ने बोला कि लड़की का तो हिस्सा होता नहीं है, land में तुम्हें क्या क्यों करना है. एंड शी वॉज सरप्राइज्ड कि आप मुझे ऐसे क्वेश्चन पे कैसे कर सकते हो, मैं तो आपका जो अधिकार बनता है उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स पेरेंट्स आती हैं कि आपको ध्यान रखना होता है, आप तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हो. सो आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये अर्बन सिचुएशन है, मतलब ऐसा गांव में तो पता नहीं क्या ही होता होगा. रादर इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है गांव में. गांव के लोग आजकल थोड़े से ज़्यादा समझदार हो गए. पंचों के सामने मतलब प्रॉपर्टीज़ डिवाइड कर दी जाती हैं, और क्योंकि वहाँ पे एक अनदर पीयर प्रेशर होता है कि हमें लड़की को धन संपत्ति देना है, डॉरी देनी है शादी में, और जिसके पास जितने किले होते हैं तो उतने किलों के हिसाब से आपको ज़मीन देनी है. राइट राइट. है ना. वी स्टिल सी ऑन इंस्टाग्राम रील्स की बड़े जोरों से बताया जाता है. राजस्थान में तो स्पेशली इफ आई टॉक कि हमने इतना इतना अपनी बेटी को दिया. तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग है. मतलब पीपल टेंड टू डिवाइड द प्रॉपर्टी एंड गिव इट टू देयर डॉटर, विच इज समवट वेरी गुड एंड मोर सिविलाइज्ड रादर देन इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लालच खत्म ही नहीं होता है. पीपल थिंक कि जितना मिल जाए शायद उतना कम ही है. जबकि मैंने जो भी कुछ मतलब आने से पहले जब आपसे डिस्कशन डिसाइड हुआ, आई रिसर्च्ड अ लिटिल बिट ऑन इंटरनेट, आई फिगर्ड दैट अर्बन मतलब ऐसा निकल के आया फैक्ट कि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ अवेयरनेस कम है, ऐसा लिखा था. बट आई थिंक लाइक यू आर सेइंग कि वहाँ पे लोग फिर भी अवेयर हैं, एटलीस्ट दे फॉलो द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर. वहाँ पे आपको लीगल टर्म्स क्लियर नहीं है, बट उनका जो तरीका है देने का, दैट इज on the other perspective. It is on a part of a dowry, but they are giving it. I mean to say this thing. और अब ऐसा है, मतलब मैंने खुद से देखा है, because I also have certain like my family friends जो गांव में रहते हैं, और उन्होंने अपनी बेटियों को बड़े खुशी खुशी होके, मतलब before they just pass away, they have given the share of individual land or whatever the property they have to their daughters as a thing that हमारी बेटी है, छोरी को कोई दिक्कत ना हो, मतलब ससुराल में, ये सोच के कि छोरी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए, so that her future is secure, right, as per the present scenario when we see the things around, so that she has her own safety backup tomorrow. And this is a kind of a thought process which villagers have. बट हमारा वही यही, हम अगर सिविल सोसाइटी अर्बन एरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पे लोगों को है कि लड़की तो अपने आप कमा ही रही है ना, तो भाई को ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब हम आज तक भी लोग क्यों लड़का चाहते हैं, इसीलिए तो कि कल को हमारा जीने का सहारा बनेगा. रादर इट इज़ वेरी अपोजिट कि लड़का कभी भी अपने माँ बाप का नहीं करता है. It's always the girl who take care of the parents. Absolutely, always. Absolutely. Whether she is sitting abroad, whether she is sitting in the same city, whether she is sitting in the south, north, anywhere you talk, but she'll be more concerned and more particular for her parents. बिल्कुल. And especially towards their fathers, I would say कि वो सही हैं, वो अच्छी health के साथ रह रहे हैं, conditions are good, they are getting everything on time. Rather than आपका जो भाई है वो बस ये होगा कि हाँ बहन तू देख रही है ना. दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी रिलक्टेंट एटीट्यूड वी हैव कि हेलो बहन, हाँ तूने देखा, अच्छा ठीक है, माँ पापा का देख लिया ना, अच्छा तू देख रही है ना, चल हो जाएगा. बट जहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात करते हैं तो वहाँ पे ये हो जाता है कि यार तू तो खुद ही कमा रही है, तेरा पति भी कमा रहा है, तुम तो दो लोग कमा रहे हो, देख मेरी पत्नी नहीं कमा रही है, मेरे बच्चे भी हैं, तो बच्चे तो लड़की के भी हैं ना, एंड शी इज मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हर पेरेंट्स, सो व्हाई डोंट शी गेट हर शेयर. बिल्कुल.
तो ये थोड़ा शहरों में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू गांव में। इनफैक्ट आउट ऑफ 20 केसेस आई फील कि 18 केसेस में ऐसा है कि लड़की ही देख रही है, वो ही कुछ ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, लड़की भाग भाग के जा रही है, वो छुट्टी भी ले रही है ऑफिस से, उसे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, भाई पहुंच रहा है ऑन द सेम डे ऑफ द सर्जरी। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। और उससे भी ज़्यादा ऐसा होता है कि लड़की दोनों तरफ से पिसती है। आप अगर देखें कि उसे अपने ससुराल को भी देखना है, उसे अपने मायके को भी देखना है, right. और वो ससुराल से भी सुनती है, और मायके में भी हमेशा यही होता है ना कि बहुत कम लड़कियों को वो रिस्पेक्ट दी जाती है। अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज बीन सिक्योर्ड एंड वेरी वेल केप्ट फॉर द बॉय कि बेटा आएगा, बेटा करेगा, बेटा ये, बेटा वो। जबकि बेटा तो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके सारे इन डेली क्योज में, और आपके सारे जो दिन बे दिन के आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम होते हैं कि माँ को कुछ चाहिए, माँ को कुछ करना है। नाउ तो लाइफ हैज़ बिकम सो इजी कि एवरीथिंग इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। तो तब भी आप बेटी को फ़ोन करते हो कि यार ये देख देना, आप बेटे को फ़ोन करो। सो देयर दे फॉरगेट अबाउट देयर सन व्हेन इट कम्स टू गेट द वर्क डन, बट व्हेन इट कम्स टू गेट हर राइट्स क्लेम, then they remember everything. करेक्ट। और एक मेंटल आई थिंक ब्लॉक भी है, और ये मतलब शायद मैंने भी एक्सपीरियंस किया होगा मेरी फैमिली में, और इसमें आई थिंक कंडीशनिंग वैसी रही है स्टार्टिंग से कि अगर लड़की जॉब भी कर रही है तो भी ऑफिस से आने के बाद उसका स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलता है उसको। हाँ, नहीं मिलेगा। मतलब चाय पीनी है तो शायद वो खुद बना के पिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा। ये नहीं होगा कि ओ बेटी ऑफिस से आई है उसके लिए चाय बनाओ, बट बेटा अगर ऑफिस से आया है तो थक के आया है तो चाय बनाओ, यू नो। एग्जैक्टली। सो ये कंडीशनिंग आई थिंक मुझे लगता है जो चेंज होने की बहुत ज़रूरत है फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली ना। मतलब जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ऐसे ही हमें अपब्रिंगिंग दी जाती है कि लड़की को शुरू से ही बोला जाएगा कुछ बनाना सीख ले, कुछ बनाना सीख ले, ससुराल जाके क्या करेगी, ससुराल जाके। अरे भाई लड़का भी तो सीख सकता है, बिकॉज ही कैन ऑल्सो वर्क। एंड सेम वे द बॉय इज बीन टोल्ड इन अ वे कि भाई तू गाड़ी चलाना सीख ले, बाइक चलाना सीख ले। आप कभी मतलब आपने नोटिस भी किया होगा, बॉयज यूजुअली डोंट गो टू ड्राइविंग स्कूल्स। लड़के ऐसे ही, मतलब मैं किसी से भी बात करूं, हाँ, तो वो ये कहते हैं यार मैं तो ऐसे ही पापा के साथ स्टेयरिंग पे बैठा, बस एक दिन चलाई, दूसरे दिन चलाई, एंड थर्ड डे आई वाज ऑन द रोड। बट लड़की को वही आप बड़ा नाजुक सा मानते हो, उसे बोलोगे कि नहीं ड्राइविंग स्कूल जाओ, सीखो, आप उसे छोड़ने जाओगे, आप उसे पिक करने जाओगे। सो व्हाई कांट यू लेट हर फ्लो इन हर ओन पेस? बिकॉज इफ वी लेट हर ग्रो फ्रॉम द वेरी इनिशियल ऑफ अ एज in her own pace, then she is also as strong. और अगर हम compare करें तो emotionally ladies are, females are more stronger than men. That is I think proven scientifically also. Exactly. And वो सिर्फ हम फिजिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं। हम जब भी बात करते हैं ना तो हम हमेशा एक फिजिकल एस्पेक्ट में आ जाते हैं कि आदमी ज़्यादा बोल्ड और ताकतवर होता है देन कंपेयर टू द विमेन। बट वो उसकी बनावट ही वैसी है ना। आप अगर औरत को देखेंगे तो हमेशा सॉफ्ट होती है, बट आजकल की जो हमारी जनरेशन है अगर आप उसको देखें तो वो भी उतनी स्ट्रांग और उतनी ही बोल्ड निकल के आते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो सी देयर सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स, तो दे आर ऑल्सो ग्रोन अप इन सेम वे। एंड जब बाहर आप काम करने जाते तो हर समय तो आपके पापा या भाई आपके साथ नहीं चलते ना बॉडीगार्ड बन के। सो योर अपब्रिंगिंग इन दैट पैटर्न ग्रोज अप, आपका वो एंगल बहुत वाइड हो गया, तो आप भी उतने ही स्ट्रांग हो। और उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज दोनों की बिल्ट अलग अलग है। आपकी जो मस्कुलिन है वो मेन में ज़्यादा है, फीमेल में कम है, और जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो फीमेल में ज़्यादा है और मेन में कम है, एंड दैट्स हाउ दे बैलेंस ईच अदर। बट इन द नॉर्मल कंटेक्स्ट इफ वी टॉक तो हम कहते हैं कि आदमी को दर्द नहीं होता, बट आदमी ही सबसे पहले कंधा ढूंढता है बाहर जाके जब जरा सा कुछ प्रॉब्लम होती है। I don't know how much right it is to speak on this platform, but जब फीमेल कंसीव करती है तो 9 महीने she don't go through any sexual things, है ना? Right. Because she is carrying a baby. Correct. तो क्या उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते? होते हैं। बट हमेशा हमने आदमी को ही क्यों सुना है
कि वो ही बाहर जाता है या एंड देन ही क्रेव्स एंड देन ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, इवन टू हिज फीमेल फ्रेंड्स, कि यार आई एम काइंड ऑफ क्रेविंग फॉर द सेक्सुअल डिजायर्स, आई नीड टू डू सेक्स एंड ऑल। राइट। तो दोनों में होते हैं, बट वही क्योंकि औरत को तो देवी माना जाता है ना, कि अब वो तो बच्चा पैदा करेगी, तो इसलिए तो शी इज लाइक ओके विद इट, बट men cannot compromise on that. Why is that? Rather it is for both of them, because वो बच्चा सिर्फ आपके मतलब वो एक औरत का नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल। दोनों का आ रहा है। सो correct. आई गेस अगर क्योंकि वो हमें बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि यार आदमी तो बाहर जा सकता है, आदमी एडल्टरी करे तो कोई बात नहीं, आदमी तो होते ही रंगीन मिजाज के हैं, अगर औरत किसी आदमी के साथ बैठ के चाय भी पी ले तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। सो दैट इज हाउ वी बीन ब्रॉट अप। आदमी बनियान पहन के सड़क पे उतरता है तो वो फैशन है, भाई आदमी है मतलब पहन के जा सकते हैं। वही टी टॉप या वही ब्रा के साथ अगर औरत सड़क पे उतर जाए, क्रॉप टॉप जिसे आजकल हम बोलते हैं, तो आप उसे अश्लीलता का नाम दे देते हो। व्हाई इज दैट? बिकॉज वो ही हमें बचपन से वैसा बड़ा करा जा रहा है। And that's why there is a huge difference, a huge generational gap of our Gen Zs and the millennials, और I would say जो हमारे भी parents हैं। तो हम अपने आप को मान सकते हैं कि we are the ones who are into the transitional phase, जिन्होंने ऐसे भी देखा है कि आप शॉर्ट्स पहन के अगर बाहर चले जाएं 90s में बहुत बड़ी बात होती तो थी। बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो माइक्रो शॉर्ट्स चलते हैं, मतलब यहाँ तक कि आप बिकनी के ऊपर एक नेट का कपड़ा पहन के सड़क पे उतर जाते हैं, देन यू से इट्स अ फैशन। तो वो उसके लिए वो एक कन्फाइंड एरिया नहीं रह गया कि आप जब बीच वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप शायद तभी बिकनी पहन सकते हैं या आप बिकनी के जैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अ फैशन इन द मेट्रो सिटीज ऑल्सो, very occasionally and very often I get to see it in the mall or anywhere I go out, that people are having to the shortest of the shortest clothes being worn on their body and they are out. And now nobody questions anyone, because you dare to question or put a finger on anyone, people will come out with their rights and duties and their all the freedom things, ki how dare you say us. So there is a huge difference that has come up, and Correct, there is a huge change. I remember in my college time when I was in graduation, जीन्स पहनने के लिए हमने एक दिन डिसाइड किया था, बिकॉज दैट वाज द ओकेजन फॉर अस, कि ऐसे तो हम सूट पहन के जाते थे, बट फिर थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आज जीन्स पहन के जाएंगे, एंड दैट वुड बी प्रॉबली ड्यूरिंग द विंटर्स, नॉट इवन इन समर्स, क्योंकि I विंटर know. में रीज़न आप फैमिली को बोल सकते हो कि नहीं वो कि ठंड ठंड लगती है है, इसलिए। हाँ। इमेजिन, so from that point to till Till today today, we've no, seen a of lot. course. I'll talk about myself only. So I come from Dehradun, means I'm born there, and Dehradun has recently been very much developed and have means upcoming a very metro city kind of, हम कह सकते हैं metro culture देख रहे हैं हम वहाँ पे। But वहाँ पे when I was growing up, तो I'm a typical Punjabi girl, born in a मतलब very पंजाबी काइंड ऑफ अ फैमिली, कि वहाँ पे आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई यूज टू वेयर शॉर्ट्स एंड मूव आउट। आई वाज इन 8th-9th क्लास और एक्टिवा पे आप जा रहे हो, तो मेरे पेरेंट्स को फ़ोन आता था कि जो आपकी कच्चे वाली लड़की है ना वो इतनी तेज एक्टिवा चला के जा रही है। सो दिस वाज द टैग लाइन फॉर मी, एंड आई वाज नोन फॉर एजेस टिल द टाइम आई एक्चुअली मूव्ड आउट फ्रॉम देयर टू दिल्ली to do my graduation and further studies, and I got settled here only, कि आप आज भी वापस जाओ तो लोग अगर आपको याद करेंगे तो कहेंगे हाँ यार तू उस टाइम पे एकदम शॉर्ट्स पहन के घूमती थी ना एक्टिवा के ऊपर। सो दैट इज़ योर आइडेंटिटी अभी भी स्मॉल टाउन्स में। और लड़की को वैसे ही देखा जाता है कि शी इज़ नॉट अलाउड टू डू एनी सच थिंग, बट यही अगर लड़का बॉक्सेस पहन के या ट्रंक पहन के भी सड़क पे उतर जाएगा तो इट्स अ फैशन यार, लड़का है क्या ही जा रहा है। सो दैट इज अ मेंटल ब्लॉकेज आई वुड से पीपल हैव, true, and we need to clear up that, because with the each changing time and each passing year we are moving more and more towards the modernization. I would say it's a modernization or a westernization, or I would say that we are forgetting our roots, or
forgetting our traditions and culture, whatever it would be. But yeah, the generation today is very vocal about each and everything, whatever they do. Correct. Another thing I feel, सुरभि, की लीगल एस्पेक्ट्स की जानकारी ना होने में, क्या कम होने में, ना तो नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होता है सबको, कम होने में एक और कारण है कि जो लैंग्वेज होती है ना, लीगल लैंग्वेज, वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है. So is it intentional by the legal system or what is it? No, no, no. It is not intentional by the legal system, but it is being written that way. Yeah. And आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाती है. ऐसा नहीं है आप उसका बिल्कुल मतलब जो मेन मीनिंग होता है आप उसमें ना जाके अगर आप उसका सिर्फ एक बेसिक सा मीनिंग भी समझना चाहेंगे, सो इट्स नॉट इवन दैट टफ टू अंडरस्टैंड. आप मतलब एक जेनरिक सा एक आइडिया ले सकते हैं. हाँ, मतलब जेनरिक सा नोशन है कि यार लीगल लैंग्वेज मतलब बहुत डिफ़िकल्ट, कैसे समझेंगे, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, मतलब इंसान पढ़ने से भी कतराता है कि यार इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, समझना बड़ा मुश्किल है, ऐसा जेनरिकली. बट जो आप उसके एग्जैक्ट लीगल टर्म्स पे मत जाइए. वट एवर इज रिटन इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, आप उसको उसका जो क्रक्स है वो निकाल के अगर समझेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मतलब इतनी भी टफ नहीं है. But yeah, it has its own because it has been taken from the various part of the world. हमारा सब कुछ अपना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. आई एम श्योर ये एक रीज़न हो सकता है. ब्रिटिश हाँ, तो अब हमने कुछ चीज़ें कहीं से ली हैं, कुछ चीज़ें हमने यूके से ली हैं, कुछ हमने यूएस से ली हैं, कुछ हमने इंग्लैंड से ली हैं. तो जो भी आप अलग अलग मतलब वर्ल्ड के पार्ट से कलेक्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आ रहे हैं. तो हर चीज़ को कंबाइन करके एक हमारा संविधान बना है और उसको समझना और उसको कैरी फॉरवर्ड करना वो अपने आप में एक चैलेंज है. आई थिंक एक्सप्रेशंस चूँकि हर देश के अपने होते हैं तो वो शायद कंबाइन करके थोड़ा सा टिपिकली लोगों को ऐसा लगता होगा. आई मीन जोक्स अपार्ट, दैट वाज जस्ट अ नो नो नो. और अभी भी वैसे भी मतलब जब से अभी जैसे हमारा सीआरपीसी और आईपीसी तो और भी टफ था, बट अभी जैसे हमारा बीएनएसएस जितने भी नए वो आ रहे हैं, हमारे जो नए लॉज आए हैं वो तो बहुत इजी है समझने के लिए. मतलब दे आर नॉट दैट क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड. बट आई ऑल्सो फील ऑन द कॉन्ट्ररी कि एक्सेस टू लीगल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी ईजी नाउ. Yeah, because we have Google, we have मतलब अगर मान लो कि कोई महिला जो परेशान है, अपने कुछ हैरेसमेंट हो रहा है या जो भी कुछ इश्यू से होके गुजर रही है, तो वो फटाक से गूगल पे डालेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, शायद निकल के 2-4 चीज़ें आ जाएंगी. गूगल से भी ज़्यादा नाउ तो वी हैव चैट जीपीटी, मेटा, और आप जैसी मतलब व्हेन क्लाइंट कम्स टू अस नाउ वो आधी तैयारी करके आते हैं. मतलब दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद कि व्हाट थिंग दे वांट और उसमें आप क्या क्या अपने लॉज लगाना चाहते हैं, क्या क्या क्लॉजेस डालना चाहते हैं, आप सेक्शंस कौन से इंक्लूड करना चाहते हैं. तो लोग आधी तैयारी खुद से करके आते हैं. करेक्ट. ऑल्सो डू यू थिंक लीगल प्रोसीजर्स को यूज़ करने का जो परसेंटेज है, इज़ दैट हायर इन केस ऑफ मेन कंपेयर टू वुमेन? एज इन कि दे वुड फॉलो द लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब कुछ अगर इश्यू होता है तो वो शायद लीगल कोर्स लेंगे कंपेयर टू वुमेन. क्योंकि औरत अभी भी ना वो चार दीवारी के पीछे ही रहती है. आपके बहुत सारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, आप उनसे जकड़े हुए हो, तो आप अभी भी पुलिस के पास जाने में या फिर कोर्ट जाने में डरते हो. सो देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ नॉलेज. और आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो सोसाइटी के पीयर प्रेशर्स हैं, आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग जो है वो इसमें बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है. तो इसीलिए विमेन स्टिल लैग बिहाइंड टू डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट और गो टू द पुलिस स्टेशन और सीक फॉर एनी हेल्प. अब अगर हम बात करें कि सपोज आज भी अगर हम कहीं बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी तो मतलब औरत ही लेती है, या फिर जैसे अगर हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, मतलब जैसे आई ड्राइव कार, यू ड्राइव कार और एनी फीमेल इन दी हाउस ड्राइव कार, तो वो क्या करेगी, सिर्फ नीचे जाएगी, चाबी लगाएगी, गाड़ी लेके गई, गाड़ी लेके आई, लगा के रख दी. इफ शी सेज दिस थिंग, मतलब अगर आपने रास्ते में कहीं खुद से डलवा लिया तो डलवा लिया, बट जैसे इफ यू आर बैक होम एंड देन यू से कि
मुझे पेट्रोल डलवाने जाना है या मुझे गाड़ी की सर्विस कराने जाना है. So it's always like your driver, your brother, your husband, your father. So that 4 family male figures are only doing these kind of jobs. There are very less handful of females who actually drive the vehicle and go to the service station themselves. Very rare. You'll very rarely find anyone. Because उन्हें सिर्फ चलाने से मतलब है. वो खुद भी तो मतलब लिटरेट नहीं होना चाहते हैं. बिल्कुल. जैसे कि देयर वाज अ एड आई सॉ इट कि उस एड में दिखाया गया कि उसके जो डैड होते हैं वो उसे टायर चेंज करना सिखा रहे होते हैं. शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल वर्स्ड फैमिली. तो उसकी दादी उसकी माँ चिल्लाते हैं कि भाई क्यों मतलब उसे परेशान कर रहा है. एंड शी इज़ नॉट एबल टू डू. देन इट स्टार्ट्स रेनिंग. Then also her father is asking her to change the tire. Then only she'll get to have some sweet or she'll able to drive the car. मतलब she'll get the keys. And one fine day when she's stuck somewhere, ऐसा फिर आगे दिखाया जाता है कि she is able to do the changing of the tire herself. She was stuck in some jungle and all. And that day she remembers her father, that treatment, and then she says कि I love you father. I guess it was for Father's Day or something like that. Ki how your fathers, like there are some sensible parents and sensible father, I would say, ki who train their daughters from childhood only for the worst which can happen with you tomorrow. I think this is the change we need. This is a change. Yeah. And that's the same thing I told ना that अगर आप जाएंगे तो कभी भी आप किसी कार के शोरूम में चले जाएं तो लड़कियां नहीं समझती हैं कितना पावर सीसी है, कितना इंजन है. आप 4x4 ले रहे हैं, 2x4 ले रहे हैं, ये होता क्या है, आप कितने सिलेंडर्स की कार ले रहे हैं. बिल्कुल. Girls are never into it. There are very handful of, I would say, very handful of females who are very keen to understand what are the technical terms behind the huge vehicle you drive. बिल्कुल. I think that this is where the real empowerment of women lies. Exactly. So when female means, I'll say for this, for the part of a women also, when we talk about the feminism and when we talk about being the feminist is not only about this thing when you just get dressed up, move out of the house, start a car and go work and come back home and then enjoy your tea. It's about every aspect. Like if you're sitting in a circle of 100 men, you are able to pull off the conversation with those 100 men. That's the feminism. True, true. Because then every man would be interested to talk to you, not in a way that you are beautiful or you're smart, because you have the knowledge, you have the power to make a contact with every individual and talk on any topic. And there where the feminist or the feminism really lies. Right, right, right. That's so rightly said, Surabhi. So now let's talk about cyber laws. Would you like to state any laws which one should be aware, because we are using internet a lot, social media a lot? Okay, जो उनको so कुछ awareness होना suppose चाहिए. if somebody bullies you online, somebody's hack your account, somebody blocks your account, and somebody is using your pictures or using the obscene pictures of yours, so you can directly lodge a complaint on the cyber cell. And that is not only the end of it. You need to within 3 days take that complaint which you have lodged online, that complaint, take a acknowledgement number. We receive a acknowledgement number when we file it online. Okay. आप वो लेके जो सबसे नियरेस्ट आपका साइबर लॉ सेंटर है, Right. आप साइबर क्राइम ब्रांच में जाएं, वहाँ पे उसको दें एक्नॉलेजमेंट नंबर को, उसके बाद अपनी एफआईआर रजिस्टर कराएं Okay. और वहाँ से रिसीविंग लें, तब जाके आपकी प्रोसेसिंग शुरू होती है सारी. तो लोगों को लगता है कि अगर जैसे सपोज आपका अकाउंट हैक हो गया, आपने ऑनलाइन कंप्लेन फाइल की एंड वी आर डन, तो पुलिस उस पर कार्रवाई शुरू कर देगी. पुलिस उस पर तब तक कार्रवाई नहीं करती है जब तक आप उसे उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ जाके उसकी एफआईआर रजिस्टर कराते हैं. और उसकी फिजिकली वो आपको विद इन 3 days करना होता है, 72 hours. ओके. और आप उस साइबर क्राइम ऑफिस जाएं, वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं, उसके बाद उसकी रिसीविंग लें, एंड देन वन आईओ इज असाइंड टू यू टू वर्क ऑन योर कंप्लेन. अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे somebody is using your pictures
आपका न्यूड डाटा या फिर आपकी न्यूड पिक्चर्स कहीं पे लीक कर रहा है, Right. या फिर आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे डिस्प्ले कर दिए, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट ऑल्सो फॉर दिस. ओके. आप जाएं, अपनी कंप्लेन कराएं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और देन हाई कोर्ट गिव्स द ऑर्डर टू इमीडिएटली स्टॉप दोज प्लेटफॉर्म्स एंड टेक ऑफ दैट वीडियोस. दैट इज अ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. Yeah. जनरली मुझे नहीं लगता किसी को ये ज़्यादा पता होगा इस बारे में. लोगों को यही लगता है कि आपने ऑनलाइन फाइल कर दिया, यू आर डन, सो द प्रोसेसिंग स्टार्ट्स. वो भी नहीं होता है. यू नीड टू डू द सेकेंड स्टेप बिफोर यू लाइक एंड अप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एक्शन ऑफ द पुलिस. तो उसमें दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और अगर Right. आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो गया है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं. ओके ओके, फेयर इनफ. अनदर थिंग आई फील कि हमारे यहाँ जो लीगल लिटरेसी है दैट कंपेयर टू डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. सो डू यू थिंक देयर कुड बी एनी प्रोग्राम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू पुश दिस? There is program which is been running on, but वही है कि उनकी अवेयरनेस इतनी मार्केट में क्रिएट नहीं करी जाती है. रीजन बीइंग रीजन बीन Lack of करप्शन. उसके बाद आपका सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है. वट एवर वी डू इज ऑलवेज ऑन द पेपर्स, या that does not come on the ground reality. Or there are many loophole channels when we try to process this whole schemes or these I would say जो भी आपकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. जैसे कि सपोज अगर हम एक गांव में गए, गांव पे आपका एक वो कैंप लगता है जहाँ पे आप थोड़ा सा लीगल नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, Right. तो वो सिर्फ पेपर्स पे दिखा देंगे. आप उस गांव में जाएंगे, वहाँ पे क्लास गए, नहीं होगी. एक्चुअल क्लास होगी नहीं. या फिर आपने दिखाया कि महीने में 4 क्लास होनी है, तो Yeah. आपने वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं आप उनसे मिल लिए, आपने उनको थोड़ा सा कट दे दिया. मतलब आई डोंट नो हाउ फिजिबल इट इज़ टू से इट ऑन कैमरा, बट या द करप्शन इज़ अ बिगेस्ट Which is reason. everywhere. I think it's a normal of our country कि corruption तो है ही. इतनी सारी policies, programs on paper होते हैं, but उनका implementation में आके हर चीज़ मतलब Because, 99%. People just want to mint money. आप 4 लोगों को लाके उस प्लेटफॉर्म पे रख देंगे, आप एक प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं एक गांव में, और आप उन लोगों को किसी न किसी तरह से ब्राइव कर देंगे कि आइए आप बैठ जाइए, और जैसे ही लास्ट में जब फोटोग्राफ्स खींचनी होंगी या फिर कोई नेता आना होगा या लोकल एमएलए आना होगा, सो पीपल विल कम जस्ट बिफोर दैट 5 मिनट्स वहाँ पे समोसा और जलेबी खाने के लिए, एंड देन सिट, क्लिक द पिक्चर्स एंड देन गो. Yeah. So that kind of seminars and the programs we go through usually. Correct. So that's why the main reason and the main target of the audience, which is to create the awareness or to create the literacy, has been missing in action. So अगर आपको 3 कोई मेन राइट्स बताने हो, लिस्ट करने हो फॉर women कि उन्हें पता ही होने चाहिए, what could be those 3 rights? So number 1, there should be that women is aware about the POSH Act, कि if you are working, Right. ठीक है, तो ये आपके काम से रिलेटेड हो गया. सेकंड, व्हेन यू आर मैरिड, तो आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. उसमें आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपको किस तरह से आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, Right. या फिर आपके साथ जहाँ भी हिंसा हो रही है आप उसके लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं, दैट यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट. Right. एंड थर्ड कम्स द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस. तो जब भी आप अपने घर से शादी करके दूसरे घर जा रहे हैं, Right. तो you should not let it go, rather be an equivalent participant in that property. So these are the 3 basic rights which female should be very much aware about, because जब लड़की बड़ी हो रही होती है तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद नौकरी हुई तो पॉश हो गया, शादी हुई तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, Right. और डोमेस्टिक वायलेंस के बाद जब उसे लगता है कि शी नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट, जहाँ पे शी इज़ नॉट मच एजुकेटेड but she can have her financial aid somewhere that comes from her parents side, so that's a property. Correct. So that comes with the आपका property inheritance. Beautifully summarized, Surabhi. These are the top 3 rights which a woman should be Absolutely, aware because of, right?
This is how we sum up the life of a female. Correct. 3 phases. The 3 phases: Yeah. when she is growing up, when she is working, when she is married. And once married, if she is not that literate, so what is the backup that she can create for herself is the assets which she gets from her parents. अब लोग उसे स्त्री धन भी कहते हैं, बट स्त्री धन और जो आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होता है दोनों अलग अलग होते हैं. सो वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बारी पेरेंट्स हमें ये कह देते हैं कि तेरी शादी में इतना सब कुछ जो दिया है हमने, और हमने जो तेरी शादी करी है, that is a kind of a same thing that we are giving you away. But that's a istri dhan which parents are giving. So That it is part not of the it inheritance. is not part of the property inheritance. Property inheritance only comes up when your parents tend to divide their movable and immovable properties altogether. Basis the will. That is basis of the will, I would say. And even if they are not making the will, means they are just dividing the properties. Okay. So female should always be a part of it. Sure, sure, absolutely. Super conversation, Surbhi. Thank you so much. जाते जाते मैंने भी कुछ एक list of rights निकाले थे, and correct me if I am wrong. These are the important rights which I think every female should be aware of, apart from these 3 rights. So right to equal inheritance, which you just listed down. Right against workplace harassment, posh you Posh. said, is very important. This is for the viewers to actually summarize and make a note of it. The third one is right to dignity and against domestic violence, which you again stated. Right to equal pay is about the workspace you are part of. Right to maternity leave for the working women. Right against dowry, which is again part of the harassment, domestic violence. Right to free legal aid is Yeah. again, right of women to claim. Right to zero FIR. Zero FIR is the same thing which I mentioned. That is like you can file the FIR in any of the jurisdictions. Like Right. suppose आपकी jurisdiction यहाँ पे है, बट अगर आपके साथ क्राइम किसी और लोकेशन पे हुआ है तो आप वहाँ पे फाइल कर सकते हैं. Correct. तो वो पुलिस वाले की ड्यूटी है कि he'll transfer that FIR from that to the individual jurisdiction where that person belongs to, or where that area of work comes over. So that's a zero FIR. Super, super. ये भी आपने explain कर दिया. Right to abortion is another right which women can If execute or opt for. हाँ, If- but उसके साथ I mean, she clause cannot be आता है. forced to carry the baby, right? This is what it says. Yeah, but it has a clause that every female cannot just go, you got to know that you are pregnant and then you can go for the abortion. It comes with the clauses that अगर आपको कोई physical problem Ailment है, या फिर आपकी body उस चीज को allow नहीं करती है, या फिर you feel that you have been given a mental agony on from your ससुराल side, Right. and you feel that you are not capable enough, आपकी बॉडी में मतलब आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, सो देन मतलब यू हैव अ राइट टू गेट द अबॉर्शन. अदरवाइज तो सारी दुनिया मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएगी कि दे कैन गो फॉर द अबॉर्शन. Right, सो इट कम्स विद द क्लॉजेस. हाँ, it Super. comes. Good that you pointed this out. And the last one is right to privacy and safety during rest is something women should be aware of. राइट टू प्राइवेसी इट कम्स ओवर, जैसे कि उसमें आपका वही हो जाता है कि प्राइवेसी आप किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो. मतलब इट This हैज says CRPC Indian Penal Code. CRPC हमारा वो हो गया है, it has been discontinued. अच्छा, So there is a okay. new act which has come Okay, over. So okay. that is BNSS. And तो उसमें ये है कि आपकी राइट टू प्राइवेसी है, बट राइट टू प्राइवेसी कम्स विद द थिंग कि जैसे आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपकी वर्क प्लेस पे नहीं जा सकता है, आपका फ़ोन नहीं चेक कर सकते हैं, आप अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो उस कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है. Okay. इफ़ इट इज़ ऑटोमेटिक, उसमें भी अगेन इट कम्स अ क्लॉज Okay. कि जैसे सपोज 2 लोग बात कर रहे हैं, आजकल फ़ोन आते हैं कि आपकी ऑटोमेटिक ही कॉल रिकॉर्ड शुरू हो जाती है, विच इज़ विद द एवरी कॉल. मतलब आप जितने लोगों Default का setup होता है बाय जिन phone डिफ़ॉल्ट में. सेटअप है Yeah. कि एवरी कॉल इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड. अब उसमें से आपकी इंटेंशन है कि आप कितनी कॉल्स को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं, कितनी कॉल्स आप डिलीट करना चाहते हैं. Correct. सो दैट इज़ नॉट अ क्राइम एंड दैट इज़ नॉट अ प्राइवेसी ब्रीच.
बट अगर आप इंटेंशनली, जैसे हमारे आईफोन्स में बोलता है द वीडियो द कॉल रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, so that is a breach of a privacy. Okay. When the third person gets to know about it, that the call has been getting recorded, and it is specifically done out of to get the proof or to create a proof, then it is a crime. Otherwise, if it is like on to by default note that it is getting recorded, then it is not a privacy breach. Okay. Okay. So people get confused with it. That's why जब हम बात करते हैं कि female has a right to privacy, again it comes with the clauses. Because हम जाके आप कई बारी वीडियोस देख लेंगे और फिर लोग जाके एकदम दिखाते हैं कि भाई ये तो ऐसे बोल रहे हैं और हमें ऐसा राइट है. So again, comes with the clauses. come I with the think as a clauses. disclaimer we should use. मतलब दिस इज ऑब्वियसली देयर कि Yeah. आप कोई भी चीज करते हैं, आपके अगर उसके साथ राइट्स हैं तो उसके साथ आपकी ड्यूटीज भी आती हैं. पीपल ऑलवेज रीड अबाउट द राइट्स बट पीपल फॉरगेट अबाउट द ड्यूटीज. Correct. So we need to understand whatever we are doing as an individual or as a society, it always comes in the equal balance of Correct. rights and duties, and we need to Absolutely. understand कि जो भी हम करें उसके कुछ ना कुछ दायरे होते हैं. बिल्कुल. That is there. Absolutely. Great. Thank you so much summarizing this whole conversation, Surabhi. Pleasure is all And I am very sure मुझे ही बहुत कुछ सीखने मिला है आपसे. मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी. Although हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है. In a day-to-day life, we tend to forget. मतलब हम कई चीज़ों को बहुत for granted ले लेते हैं. Correct. हमें ऐसा लगता है कि चलो ये तो हो ही जाएगा या ये तो चलता ही रहता है. Right. बट वो हमारी ज़िंदगी में शायद अगर हम उसे बहुत कैजुअल एटीट्यूड पे ना लेके चलें, इट कैन ब्रिंग अ चेंज. Super. With that hope, let's conclude this episode. I hope आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, जैसे मुझे भी मिला. तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस एपिसोड को शेयर करना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिल्कुल नहीं भूलिएगा. नमस्कार.